Hello, everybody. This is Dr. Divya Kalra, Ayurvedic doctor and a dietitian. Well, friends, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने लगी that is one of the most common topic and almost 70% of the population is actually suffering from it. Looks very common but can be really irritable for few. What I'm talking about is not any different word but a very common word that is found almost in everyone in the household, and that is indigestion. Well, friends, when we talk about indigestion, we have few types of indigestion. It can vary from person to person. जब हम indigestion की बात करते हैं, normally हमें लगता है indigestion means gas बनना. No, it's not always gas बनना. It can be something like an abdominal pain after food. It can be sometimes there are people who vomit out after food. There are people who feel bloated after food. There are people who feel discomfort after food. Just simple discomfort होता है. They're not happy after food. There are few people who have really foul smelling belches after that. There are people who have sometimes diarrhea, who have sometimes constipation. So the list of indigestion is just not restricted to just one symptom. And in few people it can be acidic regurgitations. Acidic regurgitations मतलब तेजाब सा बनना, belching होना, थोड़ा खट्टा पानी बनना, इस टाइप का. So friends, when we are talking about indigestion, today I'll take a note on the Ayurvedic viewpoint. Well, जब हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं, we have three types of Agni. One is Jathar Agni, one is Dhatav Agni, one is Panchbhautik Agni. Jathar Agni refers to the जो हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है कि हमारा डाइजेशन किस रेट पे हो रहा है. When we are talking about धातव अग्नि मीन्स हमारा मेटाबॉलिज्म किस रेट पे हो रहा है. इट रेफर्स टू द टिश्यू लेवल कि वहाँ हमारे मेटाबॉलिज्म में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं. थर्ड इज अ पंच भौतिक अग्नि. पंच भौतिक मीन्स सेलुलर इंडाइजेशन. जब हम सेलुलर इंडाइजेशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो अमाइनो एसिड्स या जो प्रोटीन्स हैं दे हैव डिफरेंट टाइप्स. कि प्रोटीन को हॉर्मोन्स बनना है या प्रोटीन्स को इम्यूनिटी सेल्स बनना है. तो उस लेवल पे जो कि एक विद इन द सेल होता है दैट इज इंट्रा सेलुलर, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं दैट इज कॉल्ड द पंच भौतिक अग्नि. नाउ since the Agni is really very important concept in Ayurveda, one very important thing is what is the reason that we are saying कि हमारी अग्नि खराब हो गई है. बहुत ही एक जनरल टर्म हम बोलते थे आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है ना. व्हाट इज इन द लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल इज yes a lot too disturbed. And टू सिंप्लीफाई मैं आपको कुछ बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगी कि लाइफस्टाइल की जो बेसिक टिप्स हैं हाउ दे कुड बी. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर डाइट. डाइट की टाइमिंग्स एंड डाइट की हाउ यू आर ईटिंग इट. प्लीज़ क्रॉस योर लेग्स, सिट डाउन एंड ईट फूड एज स्लो एज पॉसिबल. जितना आप उसे च्यू कर करके आराम से खाएंगे फूड का उतना ही बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. Second thing, diet timings. In Ayurveda, a very strong or heavy breakfast is not mentioned. As per dietetics में हम कहते हैं that we should eat like a king, but in Ayurveda वो कहते हैं कि बिकॉज सुबह का जो टाइम है दैट इज़ कफज टाइम, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. रादर जो 11 से 12 बजे या 1 बजे के बीच ब्रंच, दे एम्फसाइज अ लॉट ऑन ब्रंच बिकॉज उसके बाद ही जो सन है वो पीक पे हो जाता है. तो जब आपने खाना खाया सन भी पीक पे हो गया लाइक आफ्टर 12, एंड उस टाइम पे आपका खाना बहुत ज़्यादा बेटर डाइजेस्ट होता है. सो बिकॉज वी आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द पंच महाभूत से ही हम भी बने हैं, दैट इज़ अर्थ, स्पेस, ईथर, वायु, जल एंड ऑल दैट. तो इसीलिए वी कॉरस्पॉन्ड अलॉट टू द यूनिवर्स. सेकेंड थिंग जो हमारा डिनर है इट शुड बी नियरली अराउंड सनसेट, बट एज पर द रूटीन्स हैव बीन रियली बिजी दीज डेज तो हम मैक्सिमम 8-8:30 तक लेके जा सकते हैं अपना डिनर. बट रिमेंबर दैट ईट प्रॉपरली,
with very slow process of eating also. Just don't gulp food. Second thing very important is Diva Swapna. Diva Swapna looks, I know, thoda sa more Ayurvedic and Sanskrit word, but means day sleeping. Most of the Indian women, they have the habit of sleeping after their lunch, which should not be done. Only रात को सोएं, but properly सोएं. Around 10 you can sleep, around 6 you can get up, have a good sound sleep and stay active throughout the day. Third very important option, when you combine lots of fruits and milk together, uh, especially the fruit juices. Just imagine having watermelon and milk, और there are people who have just मिल्क ले लिया और साथ में कोई भी सिट्रिक फ्रूट ले रहे हैं, लाइक ऑरेंजेस और कीवी. दिस इज़ रियली रॉन्ग. देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जैसे हमें पता है फिश एंड मिल्क नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट. टोमेटो के साथ अगर हम मलाई डाल देते हैं, जो कि हमें बहुत टेस्टी लगती है, नो डाउट, बट दैट इज़ एक्चुअली इनकम्पैटिबल फूड. Now friends, one more thing is, if we are sometimes हमसे over eating हो गया, ठीक है, it's okay, but sometimes what happen, we are constantly overeating, you know, like you know festive mode, और एक होता है ना आदत ही पड़ जाती है थोड़ा ज़्यादा खाने की, even that causes indigestion. Then too much of sweet, too much of fried, too much of fatty food, इवन दैट इज़ रॉन्ग. आजकल जितना ये फ्रोज़न फूड चल गया है, नो डाउट हम उसे दोबारा से डीफ्रॉस्ट करते हैं, बट प्रैक्टिकली फ्रोज़न फूड इज़ नॉट वेरी हेल्दी as Ayurveda is concerned. And when we are one very important thing I forgot, in modern dietetics we say कि पानी खूब पियो, right? But in Ayurveda we say we should be drinking water only when we are thirsty, especially if the people who have pith prakriti. Now I'm not going in that details, but जिनकी पित्त प्रकृति है उनको बहुत जल्दी भूख लगती है, सॉरी बहुत जल्दी प्यास लगती है, दे शुड बी ड्रिंकिंग दैट मच ऑफ वाटर. So just making a universal rule that every person should be drinking 10 to 15 glasses of water is not the Ayurvedic viewpoint, right? Now friend, one more thing very important is that हम लोगों ने बात की कि आपका ये कैसे हो रहा है, physiological reasons क्या हैं, but there are psychological reasons also. Too much stress, too much anxiety, and I think that has actually invaded the society really. And इसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा indigestion होती है, ये दिखता नहीं है. And you know, even if you are telling our doctor कि हमें stress है, it's just written, okay, suffering from stress, but nothing is done about it. So your physiological, your fears, your anxiety, your depressions, your jealousy, बहुत कुछ है जो हमारी indigestion को create करता है. Now one very important thing is that once we are talking about the symptoms, अब clinically मेरे पास कैसे patients आते हैं, right? Clinically क्या हो रहा है, there are people who would say कि हमें बहुत ही ना लूज मोशंस लग जाते हैं, हमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. दिस इज़ वन सेट ऑफ सिम्टम. there are people who are saying हमें बहुत ज़्यादा abdominal pain हो रहा है, and we just start thinking on the lines of ulceration कि हो सकता है उसको ulcers हो gastric mucosa में, मतलब this gastric mucosa erosions. And there are times people are saying कि हमें सिंपल भूख ख़त्म हो गई है, हम कुछ भी खाते हैं हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा, right? कि we are not finding anything yum, so we don't feel like eating. Sometimes they say हमें heaviness है, sometimes वो कहते हैं हमें gas है, and देर आर मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं. लेकिन एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ. देर आर टाइम्स अ पर्सन वुड से कि हमें 4-5 महीने से या 6 महीने से बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, बॉडी फिटीक, लाइक हर बॉडी का ऑर्गन में पेन हो रहा है. एक है पेन हो रहा है, दैट इज़ वन रीज़न. वन कैन बी बॉडी में हेवीनेस फील हो रही है, लाइक वी आर नॉट फीलिंग लाइट, वी आर फीलिंग हैवी, टांगों में भारीपन फील हो रहा है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्नि. जब अगर हमारी धातव अग्नि जिसने टिश्यूज़ को नरिश करना है वो भी ख़राब हो गई है, यू नो, तो कहीं ना कहीं हमारी न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज्ड होगी. एंड इस वजह से भी
ये हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड नॉर्मली एज अ प्रैक्टिशनर व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, विटामिन B12 ले लो, मल्टीविटामिन ले लो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई ठीक हो जाए। बट अगेन एज एन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप वहाँ धातव अग्नि को ठीक करें। Right. Now, what is the best way to treat Agni? Well, friends, when we are talking about Agni, it may not be really good for everyone, but best is fasting. Now, fasting can be of two types. One can be very strong, one can be mild, and one can be like medium basically. Strong fasting, if you can survive on warm water, बहुत ज़्यादा है, आप काली मिर्च या जिंजर डाल सकते हैं उसमें थ्रू आउट द डे फॉर 2 to 3 days. इफ़ यू कैन डू, you'll be very comfortable, but according to your personal efforts, and आपको अगर सूट कर रहा है ये, इफ़ यू कैन बी डूइंग इट कंफर्टेबली, अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं, इट वुड बी रियली गुड. वन मोर थिंग, इन जर्मनी क्या होता है, दिस अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रूट जूस फास्टिंग. एंड आजकल एक बहुत ही ज़्यादा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, अल्कलाइन डाइट, जिसमें कि हम क्रैनबेरी जूस, बीट रूट जूस, इसका बहुत अच्छा लाइक लिक्विड्स बेसिकली for 3 days, 8 days, for even 15 days. If you can do fruit and alkaline stuff, vegetable juice fasting, it can be done. वो भी बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा. और अगर लगे कि नहीं, वी नीड सॉलिड फूड फॉर सम टाइम, द बेस्ट इज लाइट खिचड़ी, पतली खिचड़ी, नॉट गाढ़ी वाला, थोड़ा जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, स्पेशली मेड विद जो टोटे चावल होते हैं छोटे छोटे, उसके साथ, एंड ग्रीन मूंग दाल. यस, हमारे पंजाब में थोड़ा सा येलो मूंग दाल इज़ मोर फेमस, बट in Maharashtra side or south side, green moong dal khichdi is very common, and that's very very well for improving the indigestion. So without medicine also you can treat yourself. And कई बार ऐसा होता है कि द एक्यूट केसेस, यू नो, कि कुछ हैवी खाया या कुछ वजह, कुछ जैसे आप शादी से वापस आए इसलिए आपको इंडाइजेशन हो गया, इट्स एन एक्यूट फेज. तो एक्यूट वाले को ट्रीट करना, यू कैन गिव एनी मेडिसिन फॉर, आयुर्वेदिक में बहुत हैं इंडाइजेशन, दीपन पाचन, आम पाचन की मेडिसिन बहुत हैं, वी कैन ट्रीट विद एनी वन. बट वेन इट इज़ a long term or chronic indigestion, it needs time. So for that, a patient has to be really really patient, because उसको लगता है कि आयुर्वेदिक कब हम ट्राई कर रहे हैं, 2 महीने हो गए. सी, इफ इट इज़ क्रॉनिक, इट वुड टेक टाइम, वो इमिजिएटली नहीं ठीक होगा. बट वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप लिटरली अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहले आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, एंड देन जितनी आपको ज़रूरत पड़े उतनी मेडिसिन प्लीज़ आप रूटीन से लें. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जैसे कि आयुर्वेदिक में मैं आपको बताया कि अग्नि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी एक ही और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिवर की ट्रीटमेंट. अगर, बिकॉज लिवर इज़ द सीट फॉर डाइजेशन, यही मैक्सिमम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर असर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं. तो व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ द बेसिक स्टमक, या जब हम अग्नि की बात करें, तो लिवर को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि हमें अपने साथ ही साथ लिवर का ट्रीटमेंट भी करना है. So for any personal queries, see, something, the medicines I just cannot describe as a general note because it is very very specific. But on a common note, yes, Trikatu can be taken, that is Sant, Marich, Pipli. Then we can have Chitrakadi Vati, we can have Liv 52 for liver, as I said, and we can have Lavan Bhaskar Churan, we can have Hingvashtik Churan. But I would always say there are few things that should be always taken under medical supervision. So just don't try anything randomly. So any queries on indigestion, we are always happy to serve you. Thank you so much.